So this is about written communication. Okay. So these notes actually are taken in a classroom. So we'll start with very basic of written communication. So written communication is very common in a business situation. So as I told you in my previous session, that whenever a business transaction takes place, it is not done verbally, because later on any of the parties can go back on their word, right? So they might not keep their promise, and that might result in a financial loss. So whatever business transactions are done, they are done through written communication. That is, a record can be kept of it, and then it can also be referred in future. So written communication is very important as far as the business situation is concerned. Therefore, we should have good written communication skills. So whenever we are doing a business or we are representing a company, then we should have good written communication skills also. Apart from spoken communication skills, written communication skills are very important, because all business transactions are done in through written communication, right? So what are the writing strategies? All business activities are envisioned, planned, implemented, and analyzed. So there are some spelling mistakes in this, right? So you have to use your logic. So implemented is spelled wrong here. So when I give you these notes, just use your logic and try to find out the meaning. Fine. So writing strategies. All business activities are envisioned. Envisioned means we can think about it. When it's still in conceptual stage, it's called as envisioned. So all business activities are envisioned, planned, and implemented and analyzed in some written word or form. So as I told you, nothing is verbal in business, because any of the parties can go back, and in case there is a dispute, then if you have some written proof, then you can levy claims against each other. So all the business transactions take place on written form. It is through written communication, like reports, summaries, and memos, all vital information is communicated in the world of business. Fine. So whether it is reports, whether it is summaries or memos, that is memorandums. So whenever there's a interdepartmental communication within an organization, it is done through memos. It is called memo. And just like memo is a written communication, so are business letters, so are reports, and so are summaries. So everything in the business, in the world of business, is done in the written form. Now, see, most commonly used platform for transacting business and exchanging written communication is the email. So email is used in the business world to communicate with each other, whether it is within an organization or from say from an organization to the outside world. So everything is done through an email. So that email is also very important, and it is part and parcel of a written communication. Got it, Neha? Yes, sir. Okay. So yeah, so if there is a this thing, so writing reveals one's ability to think clearly and use language effectively. So whatever you write down, it shows actually your skill. Your written ability shows your skill, how well you can write. Fine. So not only speaking is important, it is also important that you are able to write well. If you are able to express yourself in the written word properly. So this comes in handy when you go in for a job or do some business transactions. Fine. So it gives us sufficient time to think, consolidate our thought process, and shape and present ourselves. So when you are speaking, you actually have very less time. So you have to think about words in a fast manner. But that is not true for writing. When you are writing, you still have time. You can actually marshal your thoughts. You can arrange your thoughts and then think, and then slowly you can write. So writing actually gives you a bit of time, at least more time than what you get while you are talking. So when you're talking, you have to think about words very fast. But when you're writing, you have sufficient time. Okay. So you can arrange your thoughts, you can consolidate and shape your ideas. You can also, try out various formats. So when you are writing, you have sufficient time. Okay. So what I mean to say by the above points, first is that written communication is very important in a business situation. So therefore, you need to have good writing ability. Secondly, writing strategies. That is,
all the activities in the business world are implemented, envisioned, planned through the written word. And it is through written communication only, like reports, summaries, memorandums, emails, that vital information is communicated in the world of business. So writing reveals one's ability to think clearly. If you are able to write well, it means that you are able to think well. Both have a direct correlation with each other. And writing gives you sufficient time to think, consolidate, and shape your views and present it in the way you like. Fine. Now, following are the effective writing strategies. So what are the effective writing strategies? First, here it is written no, but actually it is KNOW, no. Know your audience. For example, if I'm writing a letter to you, then I should know that you study in 12th standard. So the language that I'll use is very simple. If I'm writing to a person who is having a PhD degree, then of course I can use difficult English. Fine. So know your audience means that you should know who is going to read your written communication. So if that person is able to understand simple English, then you have to write down simple English. If that person can understand complicated English with difficult words, then you can go in for using complicated English with difficult words. So the key area is you have to know your audience. Okay. Then accordingly, you can design your writing style. Second, tone. Now, what is tone? See, just like your tone of voice is, see, if you're angry, then your tone of voice is angry. If you are trying to console somebody, then your tone of voice is conciliatory. So same is also reflected in the written word. So if you are writing down something, you can write down something in anger also. If you're writing down something, you can write down something in a request form, or you can give an order. So in all these three situations, the tone of writing will be different. When you are angry, that will be conveyed through the written, for example, a complaint letter. Complaint letter might have a angry tone because the customer is frustrated and he's complaining that he's not satisfied with the services of the company. So the tone here can be angry tone. But when you are requesting, then it is a requesting tone. When you are ordering, it is an ordering tone. So the tone of the writer will differ from letter to letter, and it shows his attitude or approach. Got it? Yes, sir. Okay. Avoid using jargon. Now, what is a jargon? Jargon means technical terms. So when you read a medical prescription written by a doctor, it is full of pharmaceutical language, right? So all the names of the medicines are written there. So that only a pharmaceutical person can understand, not you and me, because it is a technical jargon. It is a technical language. It is having jargon or technical terms. So what are technical terms? Technical terms are understood only by the person who belongs to that particular field. For a layman, yani aam aadmi, for a layman or aam aadmi, it is not comprehensible. An आम आदमी जो होता है उसको जो टेक्निकल टर्म्स हैं जार्गन समझ में नहीं आती. ठीक है? That is point number 3. Point number 4, non-discriminatory language. Now what is that? See, whenever you talk ना, हाँ, discrimination is कि भेदभाव. Discrimination का मतलब क्या है? भेदभाव. हाँ, जैसे कि मैंने बोला, managers and their wives are invited for dinner. ठीक है? मैंने सबको पार्टी के लिए बुलाया और बोला managers and their wives are invited for dinner. तो what I was assuming here कि all managers are male. तो इसका मतलब है कि अगर कोई फीमेल मैनेजर है तो उसके लिए है ही नहीं. तो what I have to use, I have to say, so this becomes a discriminatory language. The correct usage is managers and their spouses are invited for dinner. Here, even the female managers can bring in their husbands and male managers can bring in their wives. So if I write down managers and their wife, it is discriminatory language. If I write down manager and their spouses, spouses can be either husband or wife. So this is a non-discriminatory language. भेदभाव नहीं है इसमें. इसमें gender का भेदभाव है. इसमें gender का भेदभाव नहीं है. So always use a non-discriminatory language. First one is know your audience. Second one is tone. Third one is avoid using jargon. Fourth is non-discriminatory language. Okay, got it? Fine. Fifth one is appropriate language. Appropriate language means always keep it plain. See, the spelling of plain is incorrect. This girl who has written this has got it wrong. So plain is P-L-A-I-N. She has written plain. So keep your writing plain and simple. Why is that? Because see,
when I'm talking to you, I'm right now talking to you, right? So if you have any doubt, Yes. you will ask me. Yes, If you sir. have any doubt, you will ask me. But when I'm writing to you, so if I've written an email to you, so when you will open my email and read it out, then I'll not Yes, be sir. there to explain it to you. Yes, sir. Right? I'm not be there to explain it to you. So you'll not be able to clear your doubts. Yes, sir. Therefore, I should keep my writing style plain and simple. Fine. तो अभी मैं कोई Yes, डिफिकल्ट sir. वर्ड यूज करूंगा तो आप मुझसे पूछ लोगे बिकॉज आई एम फेस टू फेस. लेकिन when I'm Yes, writing sir. to you, you will receive my email. Say if you choose to read my email after 2-3 days, then I'll not be there to explain it to you. Then if I'm not there in front of you to explain my words, then I have to actually use plain and simple language so that you don't find it difficult to understand what I've written. Got it? Yes, sir. Okay. Number 6, grammar. See, if you make punctuation errors or grammatical errors or spelling errors or sentence structure errors, it shows that you don't have very good qualification. So if someone writes a letter that is full of spelling mistakes or grammatical mistakes, it shows that his education is not proper. Or it also shows that the person is careless. Okay. So you have to make sure that your letter is free of grammatical errors. Your letter should Yes, not sir. contain any grammatical error. So what are the things that we have to keep in mind? Let's revise it once again. Following Yes. are effective writing strategies. So this will make your writing more effective. First one, know your audience. Second, know Audience. your tone. Okay, know your Yes, tone. sir. Then third is avoid using jargon or technical terms. Fourth, non-discriminatory language. Then fifth, appropriate language, that is keeping the language plain and simple. Sixth, avoiding grammar mistakes and spelling mistakes and punctuation mistakes. Punctuation क्या होता है? Apostrophe, full stop, comma. तो ये कहाँ लगाना चाहिए हमको मालूम होना चाहिए, right? For Yes, example, sir. अगर मैं full stop लगाऊं तो उसके बाद का जो word आएगा उसका पहला letter क्या होगा? Capital, right? So this is all Yes. punctuations, punctuation marks. Got it? Yes, sir. Okay, now we come to business letter. So in my previous session, I have shown you what block format is. Now we'll go into the technical definition of a business letter. Okay. Yes, sir. Okay. A business letter is a written communication between two parties. तो जैसे communication था ना, communication क्या था? It is a exchange of ideas between two people. यही था ना? Yes, sir. उसी तरह business letter is a written communication. वहां पर क्या था कि communication can happen verbally or non-verbally. है ना? हाँ, yes, sir. यहाँ पर क्या? यहाँ पर तो written नहीं है पूरा. तो a business letter Yes. is a written communication between at least two parties. कम से कम दो लोग तो होने ही चाहिए ना. हाँ. है ना? एक आदमी है तो एक आदमी किसी और को लेटर लिखेगा. अगर दूसरा आदमी है नहीं तो वो लेटर किसको लिखेगा? राइट? सो अ बिजनेस लेटर is a written communication between two parties. For example, businessman writing to supplier, है ना? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे चाहिए 100 कंप्यूटर, तो मैंने एक चिट्ठी लिखी. मैं कॉलेज हूं, तो the businessman will write to a supplier to supply 100 computers. पिछली बार एग्जांपल दिया था ना? Yes, sir. Computer का. And customers writing a letter to a company. If some customer writes a letter to a company, say it can be a complaint letter कि हमने आपका ये खरीदा था, ये खराब हो गया, तो it can be a complaint letter, or even it can be something else. So example of business letters are businessmen writing to supplier and customers writing to a company. ये सारे examples हैं, और भी examples इसके सिवा. ठीक है? Then business letters are also called as commercial correspondence. Business letter का दूसरा synonym क्या है? Commercial correspondence, as it is used for conducting business transactions. So business letters are also called as commercial correspondence because it is used for conducting business transactions. Transactions को हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे transactions को? आदान प्रदान. आदान प्रदान. यस सर. लेन देन. लेन देन. आदान प्रदान, लेन देन. ठीक है? लेन देन किस चीज का? जैसे कि मान लीजिए मैंने आलू खरीदे और मैंने पैसे दिए, तो पैसे दिए एक्सचेंज हो गया ना, और बदले में क्या मिला? आलू. तो इट्स एन एक्सचेंज ऑलवेज. आदान प्रदान, लेन देन. ठीक है? चलिए, अब ये बिजनेस लेटर की हमको डेफिनेशन समझ में आ गई कि बिजनेस लेटर इज अ रिटन कम्युनिकेशन बिटवीन एटलीस्ट टू पार्टीज. लाइक फॉर एग्जांपल, बिजनेसमैन राइटिंग टू अ सप्लायर और अ कस्टमर राइटिंग टू अ कंपनी. बिजनेस लेटर आल्सो कॉल्ड एज कमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस. नाउ वी कम टू द कमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस. नीड. अब जरूरत क्यों पड़ती है? हाँ बोलिए.
Sir, what is the meaning of correspondence? Letter. कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब पत्र व्यवहार, पत्र व्यवहार, अच्छा, कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स yes sir. पत्र व्यवहार, ठीक है। पत्र व्यवहार. हाँ, So sir, everywhere the word correspondence will be the meaning patra vyavahar only. नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एक इंग्लिश के वर्ड के 5 मीनिंग हो सकते हैं। मैंने आपको एक हाँ, बताया हाँ, जो जो हमारे Yes, sir. सब्जेक्ट से संबंधित है। अगर यही कॉरेस्पॉन्डेंस Yes. कहीं और किसी सेंटेंस में पाया जाएगा तो फिर तो उसका उसका मीनिंग ऑफिस चेंज हो मीनिंग जाएगा। होता है. हाँ, तो मैंने आपको बताया Yes, sir. इंग्लिश के वर्ड के 4-5 मीनिंग, जैसे हमने देखा था कि कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का कितने सारे मीनिंग थे कि नहीं। Yes, sir. कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का भी था। तो वो आपको धीरे धीरे फेमिलियरिटी विद लैंग्वेज से आएगा। आप जितना अपने आप को Yes. एक्सपोज करेंगे लैंग्वेज के लिए, फॉर एग्जाम्पल इफ यू रीड वाइडली, इफ यू लिसन टू इंग्लिश वाइडली, then you will know that a word can have at least 5 to 6 meanings, है ना। Yes, sir. लेकिन आपको उसका कॉन्टेक्स्ट देख के, उसका प्रयोग देख के पता करना पड़ेगा कि उसका अर्थ इस समय क्या है। तो इस समय कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है पत्र व्यवहार। Yes, sir. ठीक है। नीड फॉर राइटिंग अ बिजनेस लेटर, फर्स्ट इट एक्ट्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपको मैंने दिखाया, एक लेटर हेड दिखाया ना अभी, Yes, sir. तो इट इज एक्चुअली अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो इफ यू गेट अ लेटर फ्रॉम अ कंपनी, इट मींस समथिंग, सम रिप्रेजेंटेशन हैज कम फ्रॉम दैट कंपनी, यानी कंपनी के बिहाफ पे कोई आया है, मैसेंजर टाइप का है ना। तो एक लेटर क्या होता है, एक प्रकार का मैसेंजर होता है कि नहीं। Yes, sir. Messenger. हाँ, सेकंड इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द सब्जेक्ट। कोई भी लेटर जो होता है, इट, अब उसमें सब्जेक्ट लिखा है, मान लीजिए लेटर में कुछ भी सब्जेक्ट मिला है, लिखा है, इसका मतलब है कि अंदर लेटर के उस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी कि नहीं। Yes. Yes, sir. थर्ड इट प्रोवाइड्स लीगल एविडेंस। मैंने बताया ना कि ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर डन थ्रू द रिटन वर्ड। व्हाई? बिकॉज इट इज अ लीगल Proof. एविडेंस। लीगल एविडेंस मतलब कि Yes. कल को कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो उसकी बुनियाद पे कोर्ट केस हो सकता है, मुकदमा दायर हो सकता है ना। Yes, sir. अगर हम सिर्फ वर्बल करते कि चलो मैं तुमको भैया 100 कंप्यूटर हमारे यहाँ पहुंचा दो, मैं आपको पेमेंट 10 दिन बाद कर दूंगा, तो बंदे ने कंप्यूटर पहुंचाए और उसने बोला कि भैया कंप्यूटर तो आया ही नहीं, तो इसका कोई लीगल दस्तावेज तो है नहीं, इसका कोई एविडेंस तो है नहीं। एविडेंस मतलब क्या होता है? Proof. प्रूफ। और हिंदी में क्या बोलेंगे? सबूत, सबूत. है ना। तो इसीलिए Yes. ऑल द कॉरेस्पॉन्डेंस इज डन इन द बिजनेस वर्ल्ड इन द रिटन फॉर्मेट through business letters. Why? Because it forms the basis for valuable legal evidence. अब जैसे मान लीजिए नेहा जो है वो कंप्यूटर बनाती है और मैं कॉलेज हूं, तो मैंने आपसे पिछले 5 साल में 50-50 करके 5 बार कंप्यूटर लिए, तो 250 कंप्यूटर ले लिए। और हर बार हमने जब भी कंप्यूटर लिए तो हमने कोई ना कोई चिट्ठी भेजी होगी। Yes, sir. तो अगर मैं वो सारी 5 बार की चिट्ठियों के एक फाइल बना लूं, तो वो एक पूरा एक एविडेंस का वो बन गया ना कि मैंने आपकी कंपनी Yes. में कॉरेस्पॉन्डेंस करी, जो ट्रांजैक्शंस किए, उसका वो पूरा लीगल एविडेंस है। Record. हाँ, अब Yes, मान लो sir. Record. कोई नया बंदा आता है मेरी कंपनी को ज्वाइन करता है और उसको भी कंप्यूटर खरीदने को बोलता हूं मैं, तो वो क्या करेगा कि उस रिकॉर्ड को रेफर करेगा ना, पहले फाइल देखेगा, चलो पिछले 5 साल में कितने कंप्यूटर खरीदे हमने, 250, कौन से कंपनी कहां से खरीदे, नया क्या से खरीदे, तो उसके पास एक पूरा रिकॉर्ड आ गया ना। Yes, sir. तो अगर कोई वर्बल ट्रांजैक्शन होता तो उसका रिकॉर्ड रख पाते क्या? जुबानी। No, sir. हाँ, वर्बल का क्या मतलब होता है? जुबानी, है ना। Yes. मौखिक या जुबानी। और रिटन क्या होता है? जो कि अपन लीगल रिटन कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, पत्र व्यवहार, ठीक है ना। Yes. Yes, sir. लिखित का मतलब यही नहीं कि कागज पे लिख रहे हैं, लिखित का मतलब ईमेल भी होता है, लिखित का मतलब व्हाट्सएप भी होता है आज के युग में, समझ गए बेटा। Yes, sir. ई होता है ना, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, E. ईमेल Yes. मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो लिखित का मतलब सिर्फ कागज नहीं है, लिखित का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल भी है, समझ गए। Yes. Yes, sir. इट प्रोवाइड्स एनलार्जमेंट ऑफ बिजनेस। इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लो कि मेरे को अपना बिजनेस जो है वो गांव में फैलाना है, तो मैंने क्या किया कि गांव में जो 3-4 जो डीलर थे उनको वो किया, एक लेटर लिखा कि मैं जो हूँ कंप्यूटर का सप्लायर हूँ, और मैं जो हूँ कंप्यूटर का जाना माना सप्लायर हूँ, मैं अच्छे कंप्यूटर बनाता हूँ, अगर मेरे को बल्क ऑर्डर दोगे आप तो मैं इसको आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। और ऐसा मैंने क्या किया, मान लो आजू बाजू 5 गांव है, तो 5 गांव में 5 डीलर्स को पत्र भेज दिया। पत्र मतलब बिजनेस लेटर, राइट। तो मैं अब बिजनेस लेटर का कहां यूज कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं? फॉर एनलार्जमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब अपने बिजनेस को फैलाने के लिए। अब जब मैंने 5 गांव में 5 डीलर्स को
5 खत लिखे, तो 25 खत लिख दिए, खत नहीं बोलना Yes, चाहिए, sir. 25 business letters लिख दिए. I've written Letters. 25 business letters to potential dealers of my products. Now out of 25, say suppose only 7 people respond back कि okay sir, we are interested to keep your computers in our shop, so tell me what are your terms and conditions and tell me about your rates. So I have sent 25 letters, response I've gotten for 7. Now these 7 people I can go and meet individually and finalize the deal. समझ गए? Yes, sir. हाँ, तो दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड एनलार्जमेंट ऑफ बिजनेस. तो अब क्या किया मैंने, सबसे पहले तो चिट्ठी लिखी, क्योंकि मैं एकदम से तो पहुंच नहीं जाऊंगा ना. मान लो 25 जगह में पहुंच जाता, उसमें से 20 लोग मना कर देते, नहीं हमको कंप्यूटर नहीं चाहिए, यहाँ तो कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं गाँव में, तो मेरा फिर पैसा वेस्ट हो जाता ना आने जाने का, होता कि नहीं? Yes, sir. तो व्हाट आई डिड वाज आई सेंट देम अ बिजनेस लेटर Yes, sir. asking about their interest, and out of 25 business letters I got a response from only 7, which means how many people have refused? 18 people have refused कि नहीं हमको जरूरत नहीं है कंप्यूटर की. तो अब मेरा पैसा बच गया ना, और मेरा टाइम भी बच गया. Yes, sir. हाँ, तो इसलिए जो पहला चीज है कि इट एक्ट्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और आखिरी लिखा है ना प्रोवाइड्स इनलार्जमेंट ऑफ बिजनेस. सो यू कैन सेंड अ बिजनेस लेटर एंड यू कैन इनलार्ज योर बिजनेस, अपने बिजनेस को फैला सकते हो, है ना, समझ गए ना? ठीक है. Yes, sir. Which also means expansion of business, enlargement और expansion of business. ठीक है. तो Yes. ये सारी चीज क्या है, नीड की जरूरत क्या होती है बिजनेस लेटर की. अब आते हैं हम फंक्शंस. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लेटर राइटिंग? फर्स्ट, प्रमोशनल फंक्शन. अभी बताया मैंने आपको एग्जांपल देके. प्रमोशनल का मतलब क्या है? एक्सपेंशन ऑफ मार्केट्स, नए मार्केट्स में जाके अपना बिजनेस को फैलाना. फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो मैं कंप्यूटर बनाता हूँ, तो कल को नेपाल में भी जाके बेच सकता हूँ ना, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जा सकता हूँ ना. Yes, sir. तो जाने की बजाय पहले मैं चिट्ठी लिखूंगा तो अच्छा रहेगा ना. हाँ, sir. उसमें से फिर जो रिस्पांस आएगा, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो अगर मान लो मैंने 50 जगह चिट्ठी लिखी और उसमें से 3 लोगों ने रिप्लाई किया, फिर मैं वहां जाके उनसे मिलके डील फाइनल कर सकता हूँ. तो इज दिस अ बेटर वे? Yes, sir. तो फंक्शंस ऑफ बिजनेस ऑफ लेटर राइटिंग इज फर्स्ट प्रमोशनल फंक्शन, which means expansion of markets by tapping new areas. Tapping new areas का मतलब है नई जगह पे अपना बिजनेस या व्यापार फैलाना, राइट? Yes, sir. सेकंड इज इंफॉर्मेशनल फंक्शन, अवेलेबल फॉर फ्यूचर रेफरेंस. मतलब कि आपका जो, मैंने आपको बताया ना कि जैसे मैंने नेहा से 250 कंप्यूटर खरीदे और पिछले 5 साल में 50 करके, तो उनकी एक फाइल बन गई मेरे यहाँ. अब उस फाइल Yes, को sir. मैं फ्यूचर रेफरेंस में भी कर सकता हूं. जैसे कि अब जब भी वो कंप्यूटर चाहिए होंगे ना, तो मैं देखूंगा कि पिछले साल कंप्यूटर कितने में दिए थे. अच्छा, तो पिछले साल एक कंप्यूटर उन्होंने 20,000 में दिया था, तो अब मैं उसको बेसिस बना के नेगोशिएट कर सकता हूं. तो इट इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर फ्यूचर रेफरेंस. क्यों? क्योंकि इट इज अ रिटन कम्युनिकेशन. अगर मान लो आपने ईमेल भी भेजी है ना, तो ईमेल का प्रिंट आउट निकाल सकता हूँ ना मैं. Yes, sir. हाँ, और उसको फाइलिंग कर सकता हूँ, फाइल में डाल सकता हूँ. Yes, sir. देन इट विल बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर रेफरेंस, अगर मैं उसकी फाइल बना के रखूंगा तो. थर्ड, Yes. लीगल फंक्शंस. इसका क्या मतलब है समझाओ. लीगल फंक्शन मतलब यूज्ड एज अ लीगल डॉक्यूमेंटेशन. व्हाट डू आई मीन बाय दिस? Sir, legal mean, sir, something very important. नहीं, लीगल फंक्शन मतलब कि सबूत. अभी बताया ना, सबूत, प्रूफ. Sir, legal. लीगल Yes, sir. डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि जैसे कि उसके लीगल फंक्शन क्या है कि कोई भी लेटर जो होता है, Yes, sir. It can be used as a evidence. हाँ, इट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस या फिर सबूत, है ना. तो इसका Yes, sir. फंक्शन, अगर मान लो कि मैं आपसे वर्बल ट्रांजैक्शन करता हूं, उसका कोई सबूत नहीं रहता, लेकिन मैंने आपको चिट्ठी लिखी कि मुझे 100 कंप्यूटर चाहिए, फिर आपने बाद में उसका रिस्पांस दिया कि हाँ मेरे पास है कंप्यूटर्स, मैं आपको इतने का रेट लगा दूंगा. फिर मैंने आपका रेट फाइनल करके आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया, एडवांस पेमेंट कर दिया, फिर आपने मेरे को कंप्यूटर सप्लाई कर दिए, मैं और मेरे प्रेमाइसिस पे आके लगा दिए. उसके बाद जब मैंने ओके किया, तो उसके बाद मैंने आपको बैलेंस पेमेंट रिलीज कर दिया. तो ये सब हमने जो पत्र व्यवहार किया, कॉरेस्पॉन्डेंस करी, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, इट कैन बी यूज्ड एज अ लीगल डॉक्यूमेंटेशन और लीगल एविडेंस. समझ गए? Yes, sir. हाँ, अब मान लो आपने जो मेरे को कंप्यूटर सप्लाई की उसमें से 5 खराब हो गए, और मैं आपको फोन किए जा रहा हूँ, आप उठा नहीं रहे, तो मैं क्या करूंगा कि आपके जो सारे जो हमने पत्र व्यवहार किए थे उसमें, कॉरेस्पॉन्डेंस की थी, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन थे, तो उसको सबको लीगल एविडेंस की तरह यूज करके कोर्ट केस करूंगा कि नहीं? Yes, sir. इसीलिए हम सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिटन फॉर्म में करते हैं. वी डू ऑल द
business transactions in written format through written communication because they are useful as a legal documentation. Got it? Yes, sir. ठीक है. फोर्थ, गुडविल फंक्शंस. अब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा लेटर हेड है और अभी आ रहा है दिवाली, तो मैंने लेटर हेड पे हैप्पी दिवाली लिख के अपने सारे सप्लायर, ये सारे कस्टमर्स को भेज दिया, है ना. मान लो मैं जितने भी कस्टमर्स हैं, जैसे मान लो मैं कंप्यूटर बनाता हूँ और मैं भोपाल में कम से कम 25 लोगों को सप्लाई करता हूँ, तो 25 वाले जो लोग हैं वो मुझसे रेगुलर कंप्यूटर खरीदते रहते हैं, तो अपने लेटर हेड पे मैं हैप्पी दिवाली लिख के भेजूंगा ना, भेजूंगा कि नहीं? हाँ सर. तो ये जो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा, हैप्पी ईद, हैप्पी क्रिसमस, इसे कहते हैं गुडविल फंक्शंस. ऐसा करने से क्या होता है, अगर मैं हैप्पी दिवाली लिख के अपने कस्टमर्स को भेजूंगा तो उससे क्या फायदा होगा मुझे? सर अपने नेम अच्छा होगा. हाँ, रैपो बनेगी. इसमें लिखा ना, ये गलत लिखा है. इट बिल्ड्स गुड रैपो. रैपो मतलब कि अच्छे रिलेशनशिप बनेंगे. आप जैसे आप किसी से अपना कोई काम लेना चाह रहे हैं, है ना, आप एकदम से जाएंगे बोलेंगे मुझे मेरे को ये काम करके दो, तो मना कर देगा. लेकिन अगर आप उसको हर दिवाली पे विश करेंगे, उनके बर्थडे पे विश करेंगे, उनके मैरिज एनिवर्सरी पे विश करेंगे, उनके बच्चों के बर्थडे पे विश करेंगे, तो वो आपके लिए फिर वो एक वो पॉजिटिव सोच रखने लगेगा ना. यस सर. तो फिर इससे क्या होगा, रिलेशनशिप बन जाती है. मतलब बिजनेसमैन भी यही करता है. बिजनेसमैन अपने ग्राहकों को कैलेंडर बांटता है कि कैलेंडर, न्यू ईयर विशेस करता है कि नहीं? Yes, वो अपने लेटर हेड पे करता है, मतलब लिखित वे में उनको चिट्ठी भेजता है ना. आजकल तो व्हाट्सएप हो गया है, लेकिन एक बड़े बिजनेस जो होते हैं वो लेटर भेजते हैं, लेटर. ठीक है, समझ गए बेटा? यस सर. हाँ, अब है कि अब जो हमने एक ब्लॉक फॉर्मेट देखा था पिछली बार, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का देखा था ना, एक किस तरह लेटर दिखाया जाता है. हाँ सर. उसे कहते हैं फुल और कंप्लीट ब्लॉक फॉर्म. ये लिखा है नीचे, फुल और कंप्लीट ब्लॉक फॉर्म. यस सर. ठीक है. अब इसके लिए क्या क्या चीजों का ध्यान देना है, जब हम बिजनेस लेटर लिखे तो क्या चीजों का ध्यान देना है, ये लिखा है ये स्टार वाले में, 4 के नीचे. लेआउट और स्टाइल ऑफ राइटिंग. द लेआउट शुड बी इंप्रेसिव एंड अट्रैक्टिव. मतलब कि लेआउट क्या होता है? लेआउट मतलब होता है द वे द बिजनेस लेटर. हाँ, आपको दिख रहा है ये लेटर हेड दिख रहा है क्या? नो सर, दिस पेजेस आर ओके, पूरे पेजेस आर विजिबल. लेट मी स्टॉप एंड अगेन शेयर. ये देखो, अब आप ये देखो, अब दिख रहा है? यस सर. हाँ, अब देखो इसमें उन्होंने कैसे अरेंज किया है, मतलब जो लेआउट का मतलब होता है कि पैराग्राफ वगैरह कैसे अरेंज किए हैं. अभी हम सिर्फ की बात कर रहे हैं, है ना. लेआउट जितना सुंदर रहता है उसको पढ़ने में उतनी आसानी होती है ना. यस सर. तो वही इसका मतलब है कि द लेआउट शुड बी रीडर फ्रेंडली. सो द लेआउट शुड बी इंप्रेसिव एंड अट्रैक्टिव. इसका मतलब यही है, समझ गए? यस सर. सेकेंड, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ. अब जैसे मान लो मैंने क्या, टाटा ने आपको चिट्ठी लिखी और जिस कागज पे चिट्ठी लिखी वो बहुत ही ज्यादा मोटा है और व्हाइट कलर का, एकदम प्योर व्हाइट कलर का है और चिकना है एकदम, है ना. तो इससे क्या पता चलता है टाटा के बारे में, बताइए? सर, द टाइप ऑफ पेपर which he used shows that he is means sir बहुत अच्छे इंसान है उनमें. नहीं, मतलब क्वालिटी. इट इज सिंपल में एक सिंपल वर्ड है इसके लिए, क्वालिटी. इट शोज क्वालिटी. अब जैसे मान लो लोग अपने शादी का कार्ड बनाते हैं, शादी का इनविटेशन कार्ड बना के भेजते हैं ना, तो उसके अंदर कागज की क्वालिटी होती है, द क्वालिटी ऑफ पेपर, वो एकदम अच्छे से अच्छी रखते हैं. यस सर. है ना. अगर मान लो गंदे ही रखते तो किस चीज के ऊपर शक जाता, उनकी क्वालिटी पे ना, कि इनके पास पैसा ही नहीं है ना, पैसा ही नहीं है. स्टैंडर्ड लेवल. हाँ, उनका स्टैंडर्ड जो है वो निचला दिखाई देता. सो द पेपर क्वालिटी टेल्स यू अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ दैट पर्सन और क्वालिटी ऑफ दैट पर्सन, राइट. जब भी हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं तो उसकी जो, अभी तो इसके पहले मैंने आपको लेआउट बताया, लेआउट देखने वाली चीज है, और जो पेपर की क्वालिटी है ना उसको छूने वाली चीज है. पेपर की क्वालिटी को छू के पता चलता है कि ये कितनी, जैसे आपने मान लो एक कॉपी बुक खरीदी, तो उसके अगर अच्छे पन्ने होते हैं तो बहुत महंगी मिलती है जिसपे आप लिखते हो, है ना. और अगर रफ खरीदना है तो वो सस्ती सी आ जाती है, आती है कि नहीं?
Yes, sir. तो पेपर की क्वालिटी होती है जो डिसाइड करता है कि, तो यहाँ हम पेपर की क्वालिटी की बात करें, उसी पेपर की क्वालिटी की। तो जब भी हम बिजनेस लेटर लिखेंगे तो पेपर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? Good quality. वेरी गुड क्वालिटी। अगर हमको अपना रेज्यूमे जानते हो, सीवी समझते हो, बायोडेटा। Yes, sir. बायोडेटा भी जब आप निकालते हो तो उसकी भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। खैर ये सब समथिंग डिफरेंट है, लेकिन दोनों का प्रिंसिपल सेम है। थर्ड, Yes. अरेंजमेंट ऑफ प्रिंटेड मैटर, मेथड नहीं है, मैटर है। अरेंजमेंट ऑफ प्रिंटेड मैटर मतलब कि आपने प्रिंटेड मैटर कैसे अरेंज किया है ना? Sequence wise. हाँ, एक मिनट होल्ड ऑन। Okay, sir. हाँ, अब मैं ये इस पे पिछली बार जो दिखाया था, ये आपको दिख रहा है? हाँ, अभी तो नहीं, sir. इसके नीचे Yes, sir. Now it's visible. तो ये है ना कंप्लीट ब्लॉक फॉर्मेट, पिछली बार देखा था हमने, Complete. Yes, sir. है ना? अब इसमें देखो, इसके अंदर मेन चीज है लेआउट। लेआउट का क्या मतलब है कि कैसे हमने इसके अंदर पैराग्राफ वगैरह अरेंज किए हैं, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय लेआउट, Yes, sir. है ना? अब हम इस समय कौन से पॉइंट की बात कर रहे थे? हम कर रहे थे, एक मिनट स्टॉप शेयर। Quality. क्वालिटी तो हो गई थी, क्वालिटी हो गई। उसके बाद थर्ड कौन सा था? ये दिख रहा है ना? Arrangement of printed matter. Yes, a sequence. अरेंज सीक्वेंस, है ना? सीक्वेंस यानी कि आपने ये देखा ना कि हमने प्रिंटेड मैटर को कैसे अरेंज किया है। अब हम वापस जाते हैं उस पर कि इसमें देखो प्रिंटेड मैटर कैसे अरेंज्ड है। मैं चाहता तो उसको एक साथ चिपका भी देता कि एड्रेस के साथ मैंने डियर सर चिपका दिया, उसके बाद पैराग्राफ को चिपका दिया, लेकिन अरेंजमेंट देखो, इसका पूरा अरेंजमेंट कैसा है। ऐसा अरेंजमेंट रखने से क्या फायदा होता है बताओ? सर जो रीडर है वो, उसको बहुत ज्यादा नहीं इसमें डीपली जाना पड़ता, ऊपर एड्रेस दिख जाएगा, उसे मेन बॉडी स्पेसिफिक दिख मतलब कुल रही है। मिला के समझने में आसानी होगी रीडर को, होगी कि नहीं? यस रीडर को पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलो वापस से नोट्स पे चलते हैं। तो सबसे पहली सब समझ में आ गई, द लेआउट शुड बी इंप्रेसिव, अट्रैक्टिव। दूसरी चीज है कि क्वालिटी ऑफ पेपर। हाँ, थर्ड है प्रिंटेड मैटर का अरेंजमेंट अच्छी तरह होना चाहिए, मतलब पैराग्राफ वगैरह अच्छी तरह। अब मान लो मैंने वहां पर 3 पैराग्राफ लिखे थे, उसकी जगह में 1 पैराग्राफ बना देता, तो आपको पढ़ने में आसानी होती कि डिफिकल्टी? डिफिकल्टी। इसलिए पैराग्राफ अलग अलग बनाते हैं ताकि पढ़ने वाले को डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, फिर एक बार हमने सब कुछ लिख लिया, उसके बाद आप अपने लेटर को कैसे फोल्ड करते हो, मतलब आपने लिखा, उसका प्रिंट निकाला, प्रिंट के बाद उसको फोल्ड करके एनवेलप में डालोगे ना। यस सर। तो उस समय अगर आपने लापरवाही कर दी कि उसको आप कैसे ही मोड़ तोड़ के और एनवेलप में घुसा दिया, तो क्या उससे क्या, जब वो खोलेंगे तो कैसा निकलेगा बाहर, सोचो। यस सर, बैड इंप्रेशन विल बी। तो बिजनेस लेटर को हर समय 3 फोल्ड किए जाते हैं। जैसे मान लो A4 साइज का पेपर है, तो उसको 3 फोल्ड करके और बिजनेस का एक एनवेलप, बिजनेस साइज एनवेलप होता है, उसमें डाला जाता है। और कहीं भी कोना वोना उसका मुड़ना नहीं चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बार प्रिंट कर लिया, लेआउट अच्छा बना लिया, प्रिंटेड मैटर को अरेंज कर दिया, अच्छा क्वालिटी पेपर यूज कर दिया तो काम खत्म हो गया, नहीं। उसके बाद उसको प्रिंट आउट निकाल के ठीक से प्रॉपरली फोल्ड करके और एक बिजनेस एनवेलप में डालना पड़ता है। समझ गए? तो द वे द लेटर इज फोल्डेड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो खोलेगा वो इस ऐसा ना, अब जैसे कि मैंने अभी देखा कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे आंसर शीट लिखनी होती है, तो जैसे उसको आंसर शीट बांटो तो वो उसके 10 फोल्ड कर देते हैं। तो मैंने बोला ऐसा क्यों करते हो? वो बोले कि हम लोग बचपन से ऐसे ही कर रहे हैं, 10th क्लास में भी ऐसे करते थे। तो मैंने बोला इसको इतना फोल्ड क्यों कर रहे हो? तो ऐसा अगर आपने बिजनेस लेटर को फोल्ड कर दिया तो क्या होगा सर? अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा रीडर पे। उसको लगेगा कि किस बेवकूफ ने लिखा है, इसको तो लेटर को फोल्ड करना ही नहीं आता, है ना? तो एक्चुअली किसकी इमेज खराब होगी, आदमी की कि कंपनी की? कंपनी
कंपनी की, क्योंकि आपने किसी कंपनी का लेटर हेड यूज किया है, कंपनी के बिहाफ पे भेज रहे हो, ठीक है ना। यस हाँ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद एनवेलप्स क्वालिटी, अब हमने लेटर की क्वालिटी तो देख ली, अब आता है एनवेलप्स Yes. क्वालिटी एंड इट्स लेआउट। जो एनवेलप होता है ना, उसके अंदर भी भेजने वाले का पता छपा हुआ रहता है बिजनेस लेटर में, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में होता है कि नहीं। जैसे मान लो टाटा से एक एनवेलप आया, तो टाटा का एड्रेस हाथ से लिखा रहेगा कि छपा हुआ रहेगा, प्रिंटेड। प्रिंटेड। तो वो भी अगेन एनवेलप की भी पेपर क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि एनवेलप की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि सबसे पहले आपके हाथ में एनवेलप आएगा कि लेटर आएगा। एनवेलप। हाँ, तो एनवेलप के अंदर भी क्या चीजें देखनी पड़ेंगी, क्वालिटी ऑफ पेपर, जो एड्रेस छपा हुआ है, वो सारी चीजें मैटर करती है ना। उसके बाद एड्रेसीज नेम, एड्रेसी कौन होता है कि जिसको भेजा जा रहा है, टू, एनवेलप पे भी टू का नाम लिखा रहेगा ना। जैसे मान लो नेहा को लेटर भेज रहे हैं, तो लेटर का नेहा का नाम और एड्रेस उस पर लिखा रहेगा ना टू में। यस तो यस वो भी प्रॉपरली वो प्रिंट करके भेजते हैं, हाथ से नहीं लिखते बिजनेस वाले। हाथ से लिखते हैं क्या? नो सर, प्रिंटेड। पर्सनल लेटर आप हाथ से लिख सकते हो, जैसे मान लो आपने अपनी बुआ जी को चिट्ठी लिखी, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप कंपनी के बिहाफ पे भेज रहे हो, तो हाथ से नहीं लिखना कभी, उसको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। समझ गए? यस ठीक है। तो यस सर। लास्ट इज स्टैंपिंग। स्टैंपिंग मतलब उसमें जब आप स्टैंप लगाओगे, तो उसकी भी, उसको फ्रैंकिंग कहते हैं, एक मशीन होती है, उसमें आप पैसा दे दो तो उसको स्टैंप चिपकाना नहीं पड़ता, फ्रैंक करना पड़ता, फ्रैंक, राइट। तो अब ये सारी चीजों को फिर से दोहराते हैं। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल द लेआउट शुड बी impressive and attractive. Second, the quality of paper should be good. Third, the arrangement of printed matter should be proper, मतलब proper paragraphs होने चाहिए. Fourth, Yes. the way letter is folded and then kept in the envelope is also very important. So only 3 folds should be there, rather 2 folds, है ना, 2 fold and 3 बार उसका वो होगा. And उसके बाद envelope and its quality is also important, यानी कि the paper used in the envelope and the paper used in the quality, the quality of the paper used in the envelope is also very important. Then the way Yes. the sender's name and the addressee's name, addressee मतलब पाने वाला, addressee मतलब पाने वाला, है ना, receiver, तो उसका नाम भी प्रॉपरली आपको प्रिंट करना है, हाथ से नहीं लिखना है. लास्ट स्टैंपिंग. अब आपने मान लो ये दिल्ली जो है, ये चिट्ठी कलकत्ता भेजनी है, कलकत्ता भेजने में उसके अंदर 12 रुपए का खर्च आ रहा है, तो स्टैंपिंग होगी ना, तो वो भी प्रॉपरली कर ली. ठीक है. Yes, sir. अब आपको समझ में आया कि जब हम कंपनी के बिहाफ पे लेटर लिखते हैं, तो कितनी ज्यादा आपको क्वेश्चन लेना पड़ता है. इतना ज्यादा क्वेश्चन हम क्यों ले रहे हैं, बताइए रीजन. सर so that our सर मतलब कोई ये ना कहे कि ये तो कैसे काम करता है, इसको लेटर भेजना नहीं आता. इसको और अच्छी तरह समझाते हैं आपको. जैसे मान लो रिलायंस है, रिलायंस क्रिकेट मैच स्पॉन्सर करती है, रिलायंस. यस सर. रिलायंस का नाम सुना है ना. यस सर. तो जो क्रिकेट मैच स्पॉन्सर करती है, तो एक क्रिकेट मैच को स्पॉन्सर करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है. क्रिकेट मैच क्यों स्पॉन्सर करती है रिलायंस, क्या आपको लगता है क्यों करती होगी बेटा? सर एडवर्टाइजमेंट के लिए. एडवर्टीजमेंट, उसकी इमेज बनती है. वो अमिताभ बच्चन को बुला के अपने ब्रांड का एडवर्टीजमेंट कराती है, क्रिकेट मैच स्पॉन्सर करती है रिलायंस जैसी कंपनी, ताकि उसकी क्या बने, इमेज बने. अच्छी इमेज बनेगी तो उसका सामान बिकेगा ना, उसका माल बिकेगा. यस सर. अब जो कंपनी करोड़ों रुपए अपनी इमेज को बनाने में लगा रही है, और आपने उसके बिहाफ पे एक लेटर लिखा और उसको केयरलेसली फोल्ड करके और खराब तरीके से, और जो एनवेलप भी भेजा उसके ऊपर सब्जी गिरा दी, तो अब बताइए आप उसकी इमेज के साथ क्या कर रहे हैं? सर उसकी इमेज बहुत कर रहे हैं, उसकी कम इमेज हो जाएगी. ना. तो यानी कि जो कंपनी करोड़ों रुपए अपनी इमेज बनाने के लिए खर्च कर रही है, और अगर आप उसका लेटर लिख रहे हैं, वो लापरवाही से लिख रहे हैं, तो उसकी इमेज खराब कर रहे हैं कि नहीं? हाँ तो सर. हाँ, तो इसीलिए ये सब चीजें अवॉइड हो, इसलिए ये सारी चीजें करके, मतलब एक एक पॉइंट इसमें लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर वो आपके बॉस के हाथ में चली गई चिट्ठी कि देखो इसने कितनी लापरवाही से लिखी है, तो फिर क्या होगा कि यार ये हमारी कंपनी करोड़ों रुपए इमेज बनाने को कर रही है, और हमारा एम्प्लॉय जो है वो इमेज खराब कर रहा है. अब मान लो वही एम्प्लॉय अगर खराब कपड़े पहन के अगर अपने ऑफिस आ जाए, तो उससे भी इमेज खराब होती है ना. यस सर. तो इसलिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, और दूसरी जो चीज है उस पे भी. तो अब ये इसके बाद आता है फुल और कंप्लीट ब्लॉक फॉर्म, है ना, ये हमने पिछली बार पढ़ा था. अब हम 5 मिनट का ब्रेक लें.
5 minutes. Okay, sir. Sir, till when class will be continued? Today you have another class at 9. Sir, no class, but today I am not feeling well. That's why. Okay, so what we'll do is we'll not take a break. We'll just wind up in next 10 minutes. Is it okay then? Okay, sir. ठीक है, तो अभी कंटिन्यू करते हैं। ये देखो ऐसा दिखता है। अब मैं तुमको ये नोट्स भेज दूंगा तो तुम उसको पढ़ लेना। एक लेटर हेड क्या होता है, जैसे लेटर हेड ये होता है, एक A4 साइज का पेपर है, ऊपर उसका कंपनी का नाम छपा हुआ है, जैसे कि ये दिखा है ना लेटर हेड, ऐसे उसका कंपनी का नाम और एड्रेस छपा रहता है ऊपर इस 1-1.5 इंच की जगह पे। समझ में आ गया? Yes, sir. In the printed form, yes, sir. उसके बाद आती है डेट, है ना, जिस तारीख को Yes. लेटर लिखा गया डेट, ये छपा हुआ सब प्रिंटेड रहता है। ये हाथ से बनाया है इसलिए हाथ से लग रहा है, प्रिंटेड रहता है पूरा। समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, sir. एक लाइन का गैप रहता है, एक लाइन है सिर्फ, यहाँ 2 दिख रही है पर एक लाइन का एक्चुअल रहता है। और टू इस्तेमाल नहीं करते, टू का इस्तेमाल नहीं करते आजकल, है ना। तो इसमें द मैनेजर लिखना चाहिए, इसने मैसेंजर लिख दिया। टू, जैसे मान लो मैं टाटा हूं और मैं स्टेट बैंक के मैनेजर को चिट्ठी लिख रहा हूं, बिजनेस लेटर, तो कैसी होगी? टू द मैनेजर, है ना। Yes, sir. इंडिया भोपाल और पिन कोड 462042 मान लो, ठीक है, हो गया? समझ में आ गया? Yes, sir. अब सेंडर्स एड्रेस कहाँ आएगा? ऊपर ऑलरेडी छपा हुआ है, देखो नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी लिखा है। हाँ, sir. और रिसीवर्स एड्रेस को कहाँ आएगा? ये वाला द मैनेजर, ये रिसीवर एड्रेस हो गया ना। Yes, sir. इसको रिसीवर्स एड्रेस को इनसाइड एड्रेस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनसाइड एड्रेस, Inside address. पाने वाले का नाम और पता, ठीक है। अब मान लो जो स्टेट बैंक का मैनेजर है, मेरे को उसका नाम मालूम है, तो मैं कैसे लिखूंगा? काइंड अटेंशन। अगर मेरे को स्टेट बैंक के मैनेजर का नाम मालूम है कि उसका नाम है अजय खरे, तो मैं लिखूंगा काइंड अटेंशन। स्पेलिंग थोड़ी सी देख लेना, है ना। काइंड अटेंशन मिस्टर अजय खरे। तो मिस्टर अजय खरे कौन है? Manager of SBI. हाँ, तो इनसाइड एड्रेस हो गया उनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच का, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्रांच मैनेजर साहब है उनका नाम है अजय खरे। अब मेरे को क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बताता है? तो ये जो हो गया, ये हो गया इनसाइड एड्रेस। इसे कहते हैं अटेंशन लाइन। जहां हम काइंड अटेंशन लिखते हैं ना, इसको बोलते क्या है? अटेंशन लाइन, ठीक है। अब इसके बाद आता है सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन क्या होती है? सब्जेक्ट लाइन के अंदर वी गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर, कि मैंने जो चिट्ठी किस वास्ते लिखी है। तो इसमें लिखा है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अकाउंट नंबर। तो इसको देख के खरे साहब, अजय खरे साहब पहचान जाएंगे कि चिट्ठी का लेना देना किस चीज से है? किसी अकाउंट नंबर से। तो सब्जेक्ट लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसी को देख के रिसीवर अनुमान लगाता है कि चिट्ठी किस वास्ते लिखी गई। समझ में आ गई? Yes, sir. उसके बाद लिखते हैं डियर सर। इसे कहते हैं ग्रीटिंग्स या सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग्स, Yes, sir. है ना। उसके बाद मेन मैसेज का, जैसे ये पूरा बॉक्स बना है ना, इसमें हमने दिखाया ना पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ थे पिछली बार, देखे थे ना। Yes, the main body of the letter. मेन बॉडी यहाँ लिखी हुई है, तो उसको छोटा सा करके दिखा दिया। समझ में आ गई ना? हाँ, sir. Yes, sir. जब चिट्ठी खत्म हो जाती है तो नीचे लिखते हैं काइंड रिगार्ड्स या बेस्ट रिगार्ड। इसने योर रिगार्ड्स लिखा है, गलत है। काइंड रिगार्ड्स या बेस्ट रिगार्ड, ठीक है। तुम अपने जो बुक है उसमें से भी देख लेना। अब इसके बाद क्या करते हैं? अब जैसे कि मैं मान लो रोशन सहजपा ने लिखी है, तो वो क्या करेंगे? जो सेंडर है वो अपने सिग्नेचर करेगा, या क्या करेगा? साइन करेगा ना। अब साइन जो है उसके नीचे अपना नाम लिखेगा, डेजिग्नेशन लिखेगा और मोबाइल नंबर लिखेगा, ताकि अजय खरे को कुछ पूछना है तो वो तुरंत फोन लगा के पूछ सकता है कि अगर उसको लेटर में कुछ डाउट है तो वो ये दिए गए नीचे फोन नंबर पे फोन कर सकता है। तो ना लास्ट में क्या लिखा जाएगा? तो लास्ट में जो लिखा जाता है उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मतलब कि योर सिंसियरली सिग्नेचर, नाम। Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, in the module, it is given that if we are presenting salutation as dear sir, then the complimentary closer will be yours faithfully. And if we are using dear Mr. X for the salutation, then the complimentary closer will be yours sincerely. हाँ देखिए, एक्चुअली फेथफुली तो कोई यूज नहीं करता आज की डेट में, सब योर सिंसियरली करते हैं, है ना। आज की डेट में योर फेथफुली तो कोई यूज नहीं करता, ये तो पुराने जमाने की बात हो गई। तो फेथफुली मींस सेम चीज होती है। अपन लोग लिखते हैं ना लास्ट में, जैसे हम लोग बोलते हैं कि नमस्कार, तो नमस्कार क्या होता है? ग्रीटिंग होता है ना। इस तरह जब हम जाते हैं तो क्या बोलते हैं? गुड बाय। तो जब हम गुड बाय
पत्र में लिखते हैं तो वो क्या होता है, योर्स सिंसियरली। Yes, sir. तो योर्स फेथफुली नहीं लिखते, योर्स सिंसियरली लिखते हैं हर जगह। और आजकल नई चीज आ गई है, बेस्ट रिगार्ड्स, Best regards. है ना। Yes, तो ये sir. अलग अलग, ये लैंग्वेज में चेंज होता रहता है, अलग अलग बताएंगे सब, अलग अलग तरीके हैं। आपके टेक्स्ट बुक में वो लिखा है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ये तो एकदम पक्की बात है, उसे क्या बोलेंगे? Complimentary closure. और उसके नीचे जो सिग्नेचर आता है उसे क्या कहते हैं? सिग्नेचर ब्लॉक। Yes, sir. उसके बाद मान लो हमने कुछ इंक्लोजर भेजा, मान लो मैंने चिट्ठी के साथ अपने आधार कार्ड की कॉपी स्टेपल करके भेजी, तो उसको क्या कहते हैं? इंक्लोजर। इंक्लोजर मतलब कि मेन लेटर के साथ साथ में कुछ और भेज रहा हूं, तो क्या होता है? इंक्लोजर। ठीक है। Yes, sir. उसके नीचे मान लो यही लेटर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर के बॉस को भी भेजना है, तो सीसी कर देता हूं। सीसी मतलब कार्बन कॉपी या कर्टेसी कॉपी, है ना। तो इसमें क्या लिखा है? Yes, sir. सीसी मतलब मान लो कि मैं एक चिट्ठी जो लिख रहा हूँ उसकी जानकारी मेरे को जोनल मैनेजर को भी देनी है। जोनल, जोनल क्या होता है? स्टेट बैंक होता है ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर के ऊपर जो बंदा होता है उसे कहते हैं जोनल मैनेजर, वो जोनल ऑफिस में बैठता है। तो यही चिट्ठी अगर मुझे उसे लिखनी है, मैं नीचे लिख दूंगा सीसी द जोनल मैनेजर। Yes, sir. लास्ट में रहता है पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है? जैसे मान लो मैंने चिट्ठी लिख ली, पूरी चिट्ठी कंप्लीट करके लिख ली, प्रिंट आउट निकाल लिया और लेटर हेड में डालने ही वाला हूं कि मेरे को एकदम से याद आ गया, अरे इसमें मैंने ये चीज नहीं लिखी, तो मैं Yes, sir. कोई चीज मिस आउट हो गई, तो मैं उस चिट्ठी को फाड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इतनी सारी मेहनत करी है ना। तो मैं क्या करता हूँ, लास्ट में लिखता हूँ P कैपिटल S। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट मतलब कि बात, स्क्रिप्ट मतलब लिखना। लिखने के बाद अगर कुछ चीज याद आती है तो हम इसके, देखो ये इसने राइट को किया है, सब चीजें लेफ्ट में आती हैं, लेफ्ट अलाइंड है पूरी। सीसी भी लेफ्ट को Yes, आएगा, sir. पोस्ट स्क्रिप्ट भी लेफ्ट को आएगा। ठीक है। तो Yes, पोस्ट स्क्रिप्ट sir. में दिस इज माय थर्ड रिमाइंडर, Yes, sir. जो कि मैं मेन बॉडी मेन मैसेज में लिखना भूल गया और चिट्ठी लिखने के बाद याद आई, तो मैं इसको नीचे हाँ. पे ऐड कर दूंगा। Yes, sir. ये हो गया बेटा पूरा फॉर्मेट। इसको अपने अपने जो नोट्स हैं उससे मिला लेना, है ना। कुछ चीजें फ्लेक्सिबल है, कुछ चीजें जो उसमें लिखी है उसको सही मान लेना, है ना। हर कोई अपना अलग अलग बताता है। तो हम लोग यहाँ Yes. पर खत्म करते हैं, और ये वाला जो मैं तुमको हैंड रिटन नोट है ये तुमको भी व्हाट्सअप कर दूँ। Okay, sir. इसमें कोई डाउट बेटा? No, sir. ठीक है। अब तुम जब इसको अपनी किताब को पढ़ोगी और ये नोट्स पढ़ोगी और जो मेरा सेशन अटेंड किया है, तो तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा। Yes, sir. डे आफ्टर टुमारो यानी कि 15 तारीख को वी विल आल्सो स्टार्ट एट 6:30 और 7 व्हाटएवर टाइम मैं बता दूंगा। आधा घंटा पहले Okay. कर लेंगे, है ना। जैसा भी होगा आई विल इंटीमेट यू। Okay, sir. फाइन, चलो ऑल द बेस्ट। Thank you, sir.